Hello students, I am your science teacher and today we are going to do a new chapter in science, adaptation in animals. Now what we will learn in this chapter: need for adaptation in animals, adaptation in different animals, adaptation by modification of different body parts, care and concern for animals. Now, first of all, you should know the definition of adaptation, means what adaptation is. So, adaptation is the physical or behavioral characteristic of an organism that helps an organism to survive better in the surrounding environment. Living things are adapted to the habitat they live in. This is because they have a special feature that help them to survive. Adaptation means कि किस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, उसमें उसको किस तरह अडाप्ट कर लेता है, कैसे उसको अपना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड अडाप्टेशन. लिविंग थिंग्स अडाप्ट अपने हैबिटेट को अडाप्ट कर लेते हैं जिसमें वो रहते हैं. और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उससे ये करने में हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ हैबिटेट. व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? एक नेचुरल होम होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल रहते हैं. हैबिटेट प्रोवाइड्स व्हाट टू एन ऑर्गेनिज्म? फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस टू सर्वाइव. हैबिटेट्स कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. देन नीड फॉर अडाप्टेशन. अब अडाप्टेशन की क्या ज़रूरत है? सो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू अडाप्ट टू देयर हैबिटेट टू बी एबल टू सर्वाइव. जिससे कि अगर वो अपनी सराउंडिंग्स को अडाप्ट नहीं करेंगे तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो दे शुड बी एबल टू अडाप्ट देम. देन दिस मीन्स अडाप्टिंग टू बी एबल टू सर्वाइव द क्लाइमेटिक conditions of the ecosystem, predators and other species that compete for the same food and space. Now अडाप्ट तो कर रहे हैं. क्या अडाप्ट करते हैं? अपने इकोसिस्टम को, मीन्स उसके आसपास और भी जो हैं ऑर्गेनिज्म, उनको प्रीडेटर्स, अपने अगर जो उनको उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे बचना सीखें. अदर स्पीशीज़ जो कि सेम उसी खाने, उसी स्पेस के लिए कम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ उनको भी हमें अडाप्ट करना है. देन अडाप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. अब आपका सेकंड हेडिंग है अडाप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं तो उनमें किस तरह अडाप्टेशन होता है, अब हम ये पढ़ेंगे. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, देन एक्वेटिक, देन एम्फीबियंस, अर्बोरियन एंड एरियल. सो वी विल डू इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. Example: lion, tiger, human, snakes. Means जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं terrestrial animals. Animals in which terrestrial animals live are known as terrestrial habitat. Desert, plains and polar region are some terrestrial animals. Habitats in which the terrestrial animals live are known as terrestrial habitats. So वो टेरेस्ट्रियल एनिमल जिस हैबिटेट में रहते हैं उसको उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है. जैसे कि कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, कुछ पोलर रीजन्स में रहते हैं, कुछ प्लेन्स में रहते हैं. सो द टू इम्पॉर्टेंट आर, फर्स्ट वन इज़ डेजर्ट अडेप्टेशन एंड सेकेंड इज़ पोलर रीजन अडेप्टेशन. डेजर्ट अडेप्टेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है कैमल. नाउ वाई कैमल? You can see the picture of camel on your screen. Camel, why? Because camel have padded feet and they can restore water in their body and survive without water for so many days. And the most important activity related to a desert adaptation is estivation. It is an activity in which and some animals undergo sleep during summers. Then second is polar region. Example is polar bear, penguins, walruses, etc. They have a fatty body. They have a layer of polar region animals. They have a thick layer of fat that is called blubber, which help them to survive in polar region and protect them from the cold. Similarly, estivation, we can observe an activity of hibernation during which some animals undergo sleep during winters. Okay, then next is our aquatic animals.
So animals that live in water are called aquatic animals. You all know. Example fish, crab, turtles. जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स उनको हम aquatic animals बोलते हैं. Then habitat in which they live are called aquatic habitat like water, ponds, lake. जिसमें वो रहते हैं उसका उनका एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं, जैसे कि रिवर है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं एक्सेट्रा. एडाप्टेशन कैसे करते हैं वो उसमें. एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर. एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स होते हैं जो उनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं. टर्टल्स हैव पैडल्स इंस्टेड ऑफ फिन्स टू स्विम. टर्टल्स के पास क्या होते हैं, फिन्स की जगह क्या होते हैं, पैडल्स होते हैं जिससे कि वो वाटर में स्विम करते हैं. देन नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. अडेप्टेशन, अब इनका अडेप्टेशन कैसे होता है. सो दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ. तो दोनों जगह पे इनका जो अडेप्टेशन होता है वो भी डिफरेंट होता है. सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉग. नाउ व्हाट इज द अडेप्टेशन ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू जंप एंड मूव ऑन लैंड. लैंड पे मूव करने के लिए फ्रॉग के पास जो उसके बैक लेग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी हेल्प से वो जंप करता है. एंड अ फ्रॉग हैज़ वेब्ड फीट जो उसको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं. फ्रॉग ब्रीथ कैसे करता है. दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर एंड यूज लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड सिमिलरली एज ह्यूमन बींग्स. देन नेक्स्ट इज arboreal animals. Now what are arboreal animals? Animals that spend most of their time on trees. जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज टाइम के लिए ट्रीज़ पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं arboreal animals. Examples squirrels, tree lizards, monkeys etc. Adaptation. Monkeys have long and curly tails that help them to swing from branch to branch. अब मंकीज़ कैसे अडेप्टेशन करते हैं, उनकी जो पूँछ होती है वो बहुत लंबी सी होती है, करली सी, जिसकी हेल्प से वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करते हैं. देन नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स. एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, उनको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं. दे हैव हॉलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई. उनकी जो बोन्स होती हैं हॉलो होती हैं और विंग्स उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम टू फ्लाई. Adaptation by modification of body parts. So according to their food habits, their animals are classified into three categories: carnivores, herbivores and omnivores. Carnivores are those who eat meat. Herbivores those are dependent on plant, and omnivores those who eat flesh and as well as plants. Okay, then the next and the final topic is care and concern for animals. Animals are an important part of our environment. We should protect देम एंड देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, तो हमें अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. हमें उनको तो प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ उनके नेचुरल हैबिटेट्स को. तो हम कैसे, अगर हम जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको ना काटें तो उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा. उनकी केयर कैसे कर सकते हैं. वॉश देम. जो लोग पेट्स रखते हैं अपने घर पे उनको रेगुलरली वॉश करना है वैक्सीनेशन के लिए. जस्ट लाइक योर किड्स, यू शुड गो टेक देम टू द फॉर देयर वैक्सीनेशन. उनको टाइम हेल्दी फूड देना है. विजिट द वेटरनरी डॉक्टर फॉर चेकअप. रेगुलरली उनको डॉक्टर्स के पास ले आना है जिससे कि अगर कुछ इलनेस है तो वो ठीक हो सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अडेप्टेशन इन एनिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ. बाय स्टूडेंट्स.